پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کی بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصل خانے آمد قونصل جنرل ابرار حسین اور دیگر عملے نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر سے ایم پی ناز شاہ، مقامی کونسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے بریڈ فورڈ سے وقار بابر مغل کی رپورٹ۔ پاکستان ہائی کمشنر لندن معظم احمد خان کا یہ بریڈ فورڈ کونسلیٹ کا پہلا دورہ تھا۔ ان کی آمد پر لارڈ میئر کونسلر شبیر حسین، شیڈو وزیر ناز شاہ ایم پی، یارکشائر کے مختلف شہروں کے کونسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھی ان کو بریڈ فورڈ کے پہلے دورے پر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر کمیونٹی سے گفتگو کرتے ہوئے ہائی کمشنر معظم احمد خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں بریڈ فورڈ شہر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے اور اس شہر سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں صف اول کا کردار رہا ہے۔ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کی جو انرولمنٹ ہے خاص طور پہ یونیورسٹی لیول تک وہ بہت کم ہے، تو یہ میری اگین آپ لوگوں کی وساطت سے اپنے اپنے ینگسٹرز کو بھی اور جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں کہ وہ اپنے ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو امپورٹنس دیں اور ایز اے سیڈ بزنس تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن میرا خیال میں ایجوکیشن از ایکولی ویری امپورٹنٹ۔ کمیونٹی رہنماؤں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ہائی کمشنر معظم احمد خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں بسنے والی اوورسیز کمیونٹی اپنی نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ وہ کمیونٹی کی بہتر خدمت کر سکیں۔ اس موقع پر ہائی کمشنر معظم احمد خان نے پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ نئے پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو کامیاب بنائیں۔ اس سے جہاں ملک کی معیشت مضبوط ہوگی وہاں اوورسیز کمیونٹی کو بھی بہت فائدے ہوں گے۔ اور میری ان سے یہی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں اس کو اب اور بھی مزید بڑھانا ہے، اور خاص طور پہ میں آپ لوگوں کے وساطت سے اپنے سارے جو بریڈ فورڈ کے جو ہمارے جو پاکستانی ہیں یا برٹش اور پاکستانی اوریجن ہیں، میں ان کو خاص طور پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک حکومت پاکستان ایک آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت ہی زبردست ایک انیشیٹو جو ہے وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کا اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے جو دیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگ اس سے پوری طریقے سے مستفید ہوں گے، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ پاکستان کے لیے ایک جو اوبیسلی جو فارن ایکسچینج ہے وہاں پر پہنچا سکیں گے، لیکن یہ آپ کے لیے بھی بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے جس میں میں سمجھتا ہوں ڈالر یا پاؤنڈ کے حوالے سے جتنا زبردست اس کے اوپر جو ریٹ آف ریٹرن ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے خاص طور پہ بریڈ فورڈ کے ہمارے جتنے بھی ہیں لوگ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو بھی دیکھیں، اور یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے۔ سابق لارڈ میئر ظفر علی، سابق یورپی ممبر پارلیمنٹ شفق محمد، سابق لارڈ میئر غضنفر خالق، کونسلر نصرت محمد، سابق میئر ڈینکاسٹر ماجد علی، کونسلر سبیحہ خان، کونسلر رضوانہ جمیل، ڈپٹی کونسل لیڈر کونسلر اور دیگر نے پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کو بریڈ فورڈ کونسلیٹ کی شاندار خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں اور دیگر شخصیات نے کونسلیٹ میں VIP کلچر کے خاتمے اور عوام کو بہترین سروس فراہم کرنے پر عملے کی تعریف کی۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ خصوصی ٹورز کا اہتمام کیا جائے تاکہ برٹش پاکستانیوں کا اپنے وطن سے رشتہ مزید مضبوط ہو۔ Pakistani consulate to meet with the Commissioner. I'm one of the councillors here in Bradford, and I really look forward to working with him closely. I would like to welcome the High Commissioner to Bradford, and taking his important to listen to our views and concerns of our residents and constituents. It's a brilliant opportunity for us as elected members to raise our concerns. ہمارے ہائی کمشنر پاکستان لندن میں جو تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی زندہ دلی ہے کہ یہاں تشریف لائے اور پاکستانیوں سے انہیں ملے، ان کے مطالبات سنیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کے مطالبات جو سنے ان پہ عمل کریں گے۔ I'm so grateful that the High Commissioner has given his valuable time to come up to Bradford. We represent large population of Pakistani community here, and it's nice that from Bradford Council perspective to work in conjunction. It was a pleasure to welcome the Pakistani High Commissioner to Bradford today, and to hear and to sit with us and listen to our concerns and our issues which are pertinent to the British Pakistani residents which we represent on a day-to-day basis. A really positive meeting with the High Commissioner of Pakistan in Bradford this afternoon. First of all, we welcome him to our great city, and we thank him for taking the time to come here and discuss some really important topics pertaining the Pakistani community here in Bradford and across. I am Councillor Imran Khan, Deputy Leader of Bradford Council. I'm really pleased that the Pakistan High Commissioner has come to Bradford here today to listen to the concerns of local residents. I think it's really important that people like the High Commissioner come to places like Bradford, because that connection with the community, with councillors, with businesses is really, really important. ہم نے یہ جو ایشوز
ڈسکس کی ہیں برٹش پاکستانی سے کے ایشوز جو تھے. ہمیں امید ہے کہ ہم ایشوز کو حل کریں گے, مل کر کام کریں گے. اس طرح کا انٹریکشن زیادہ رہے, آؤٹ ریچ ورک یہ کرتے رہیں تاکہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو خود سن کے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو پاکستانی جو یہاں ڈائسپورا کمیونٹی ہے وہ ویسے ہی سفیران پاکستان ہیں, تو اس طرح کے انٹریکشن سے ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوگا وہ بڑھے گا. ایم پی ناز شاہ نے برٹش پاکستانیوں کی برطانیہ میں عظیم کامیابیوں کے سفر اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف انفرادی حیثیت سے برطانوی معاشرے میں پاکستان کی مثبت شناخت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ہمارے ہائی کمشنر آئے ہوئے تھے یہاں, معظم علی خان ہمارے ہز ایکسلنسی یا پاکستان کے فرسٹ سٹیزن, اور بریڈفورڈ کو اکثر چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری پاکستانی ڈائسپورا بہت ہے یہاں. انہوں نے خوب اپنے خیالوں کا اظہار کیا اور یہاں میٹنگ بہت کامیاب ہوئی. میں شکریہ کرتی ہوں معظم علی خان کا بھی جو ہز ایکسلنسی ہے, یہاں کے جو ابرار خان ہمارے کونسل جنرل ہے, جو وہ ہماری عوام کے لیے وہ جو کام کرتے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی. وقار بابر مغل, 92 نیوز, بریڈفورڈ. برمنگھم میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں. لیبر فرینڈز آف کشمیر کے رہنماؤں نے آرڈنگٹن میں ہونے والے الیکشن میں مہم کا آغاز کر دیا, جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی لیبر پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کی. شیڈو منسٹر ایم پی ناز شاہ تقریب کے مہمان خصوصی تھیں. تفصیلات خاور راجہ کی اس رپورٹ میں. لیبر فرینڈز آف کشمیر نے برمنگھم کے انتخابی حلقے آرڈنگٹن سے ضمنی الیکشن کے لیے لیبر امیدوار پیلٹ ہیملٹن کی حمایت اور تائید کا اعلان کر دیا ہے. لیبر ایم پی جیک ڈرومی کی وفات سے خالی ہونے والی پارلیمانی نشست پر دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں لیبر فرینڈز آف کشمیر نے لیبر پارٹی کے امیدوار کے انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا, جس میں لیبر ممبر آف پارلیمنٹ اور شیڈو منسٹر ناز شاہ نے خصوصی شرکت کی, جبکہ تقریب میں شریک لیبر پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان نے پلے کارڈز کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر پیلٹ ہیملٹن کے حق میں نعرے درج تھے. اس موقع پر بریڈفورڈ سے شیڈو منسٹر ایم پی ناز شاہ, ایم پی شبانہ محمود, سیکریٹری جنرل لیبر فرینڈز آف کشمیر کاؤنسلر وسیم ظفر اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کنزرویٹو حکومت نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے پوری قوم کو مایوس کیا ہے. حکومت کو غریب اور متوسط طبقے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ضروری ہے کہ آرڈنگٹن کے ضمنی الیکشن میں لیبر امیدوار کو کامیاب کروایا جائے. آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم آج یہاں آئے ہیں لیبر فرینڈز آف کشمیر کے حوالے سے. ہمارا آج ایکشن ڈے ہے, دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری جو کینڈیڈیٹ ہے پولٹ, اس کو ہم نے اس الیکشن میں جتانا ہے. واپس جا کر لیبر کی ایم پی انشاءاللہ بنے گی. اور میں یہی گزارش کروں گی کہ دیکھیں جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں اپنا ووٹ ضرور اس کو کاسٹ کریں. 3 تاریخ اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو ہمارے لیے بہت اہم ہے. لیبر فرینڈز آف کشمیر, لیبر پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو ہماری آواز سنتی ہے, اور ہم نے بہت کام کرنا ہے کشمیر کے حوالے سے. دیکھیں وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, وہاں جو ظلم ہو رہے ہیں, اس نے کہا تھا کہ چکی کی طرح پیس رہے ہیں ہمارے بہن بھائی, ان کی آوازیں ہم نے پہنچانی ہے پارلیمنٹ تک. The cause of the Kashmiri people is something that's very close to my heart, very close to the heart of all of those who are involved in Labour Friends of Kashmir. We're an organisation within the Labour Party, and within the Labour Party we make it our job to advocate for the self-determination and the human rights of the peoples of Kashmir. Councillor Wasim Zafar, General Secretary of Labour Friends of Kashmir. Today we've got 2 outstanding parliamentarians, Shabana Mahmood, the National Campaign Coordinator, and Naz Shah, the Member of Parliament for Bradford West, embarking on us here in Birmingham, Erdington, where we've got dozens of Labour Friends of Kashmir activists who've all come together. شرکاء نے مزید کہا کہ لیبر پارٹی عوامی معیار کو بلند کرنے کے لیے جامع پروگرام رکھتی ہے. برطانیہ میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل میں سنجیدگی کے ساتھ لیبر پارٹی نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے حق خود ارادیت کی بھی حمایت کی ہے. انتہائی ضروری ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پارلیمنٹ تک اس کی آواز اٹھائی جائے, اور جو کشمیر میں مودی گورنمنٹ کی طرف سے کشمیری پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی اویئرنیس جتنی کی جائے وہ انتہائی ضروری ہے. My name is Steve McCabe. I'm the Member of Parliament for Selly Oak in Birmingham, and I'm here helping out because Jack Dromey was obviously my friend, and Paulette Hamilton is just a brilliant Labour candidate, and we've got to get her elected. It's brilliant to be here as part of Labour Friends of Kashmir to support Paulette Hamilton, who's a fantastic candidate, and I know she's going to be a brilliant MP in Birmingham, in Erdington. She's a colleague of mine. We've been working alongside her on the council for many, many years, and I know that she'll be a brilliant voice for the residents of Erdington, and I'm hoping... I am just delighted at the support I have been given this afternoon by the
friends of Kashmir in the community, but not only that, by the Pakistani Kashmirian community that are living in Erdington. They have been phenomenal. I was really lucky to go and visit many years ago when I was a young man. I always have a real strong affection for Kashmir, and I feel very strongly for the troubles and the difficulties that people there have had to endure. And I think Action Day is a time to remember. लेबर पार्टी ने इस नशिस्त के लिए भरपूर मुहिम शुरू कर रखी है, जिसे कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही है। लेबर पार्टी इस सीट का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खावा राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम के मकामी हॉल में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब मेंबर चौधरी कासिम मजीद के एजाज़ में इस्तकबाली का एहतमाम किया गया, जिसमें हल्का चकसवारी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके वोटर्स ने भरपूर शिरकत की। उन्हें ओवरसीज़ कश्मीरियों की मुश्किलात से आगाह किया गया। पीपल्स पार्टी बरतानिया के अहदेदारान भी बड़ी तादाद में तकरीब का हिस्सा बने। मज़ीद अहवाल जानिए बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम बरतानिया का वो शहर है जहां आज़ाद कश्मीर ख़ुसूसन मीरपुर, डडियाल, चकसवारी से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी बड़ी तादाद में आबाद हैं। यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसकी मुहिम का आगाज़ बर्मिंघम से ही होता है, और जब कोई उम्मीदवार कामयाब हो जाता है तो उसको सबसे पहले अपने सपोर्टर से मुलाकात और उनका शुक्रिया अदा करने की गरज से बर्मिंघम ही आना होता है। आज़ाद कश्मीर असम्बली के नौमुंतखब रुकन चौधरी कासिम मजीद की बर्मिंघम आमद का मकसद भी यही था। हल्का चकसवारी से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर कारोबारी शख्सियत चौधरी खुशनूद ने उनके एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें चौधरी कासिम के सपोर्टर्स के अलावा पीपल्स पार्टी के जियालों और दीगर पार्टी ओहदेदारों को खास तौर पर मदऊ किया गया था। तकरीब की सदारत बरतानिया के मरूफ बिजनेसमैन मियां अहमद मकबूल ने की। तकरीब से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब मेंबर चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उन पर जो एतमाद किया है वो इनके लिए इंतहाई फख्र की बात है। सियासत कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। 1985 का इलेक्शन या मुश्किल था, या ये 2021 वाला इलेक्शन। 1985 के अंदर भी यही खानदान इकट्ठे हुए थे, यही टोला इकट्ठा हुआ था। चौधरी कासिम मजीद का कहना था हल्का नंबर 2 मीरपुर के अवाम का वो शुक्रिया अदा करते हैं और वो बिला तफरीक अपने हल्के के अवाम के लिए काम करेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार इंग्लैंड आया हूँ, तो आज बर्मिंघम की पार्टी ने, मेरे हल्के के लोगों ने इस्तकबालिया रखा था। ये शुक्रिया मुहिम है कि इन लोगों ने यहाँ से बैठ के भी मेरी सपोर्ट की। इनके अजीज़ व कारब मेरे हल्के के अंदर हैं, इनके ख़ानदान के जो लोग हैं उन्होंने इलेक्शन में मेरी सपोर्ट की। मेरी कंस्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में मेरे लोग कंस्टिट्यूंसी के लोग आबाद हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शुक्रिया मुहिम थी और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, और बिलखुसूस में मीडिया के लोगों का मशकूर हूँ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी कासिम मजीद का कहना था कि वो सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्ट हुए हैं। चकहराम पुल का मसला हुकूमत के साथ उठाया है, उम्मीद है मार्च में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह मुतासरीन मंगला डैम के इजाफी कुनबों के हवाले से भी तरजीही बुनियादों पर काम हो रहा है। मुझे लोगों ने सिलेक्ट नहीं इलेक्ट किया है। सिलेक्ट से हमें डर लगता है, मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता। इलेक्ट किया, और मैंने आपको अपनी स्पीच में बताया कि बीइंग असेंबली मेंबर जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो रुठवा राम ब्रिज पे था। ये रुठवा राम ब्रिज का जो काम हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे उस दौर में शुरू हुआ है। उसके बाद जो पिछली हुकूमत थी ये रुक गया है। अभी हमें फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल मिनिस्टर ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने श्योरिटी दी है कि मार्च में इसका टेंडर होगा और उसके बाद इसका काम शुरू होगा। इस मौके पर तकरीब के मेज़बान चौधरी खुशनूद, आफ्ताब अहमद, मियां अहमद मकबूल और दीगर ने कहा कि कासिम मजीद की कामयाबी में सबसे ज्यादा किरदार ओवरसीज कश्मीरियों ने अदा किया है। कासिम मजीद साहब नौजवान क़यादत लेकर सामने MLA बने हैं। इंशाल्लाह हम नौजवान क़यादत पर ये पूरी उम्मीद है कि वो मसला कश्मीर को उजागर करेंगे, और उस सिलसिले में हमें ऐसे नौजवान साथियों और MLA की साथ देना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क इलाके की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। जनाब कासिम मजीद चौधरी साहब ने बर्मिंघम का दौरा किया, हम उनको वेलकम करते हैं। और कासिम मजीद के दौरा से पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन को एक नई तकवीत मिली है, और भुट्टो शहीद के नज़रिए को एक प्रचार मिला है जिसको हम सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कासिम मजीद अवाम के काम करेंगे और अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए भुट्टो शहीद के नज़रिए पर कायम और दायम रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हल्का नंबर 2 से चौधरी मजीद कासिम जो इलेक्ट हुए हैं ये मसला कश्मीर को उजागर करेंगे, और आइंदा आने वाले जो हमारी नई जनरेशन है मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब मिलकर कश्मीर की आवाज़ बने और कश्मीर के लिए कुछ करें। क्या कश्मीरियों को कश्मीर का हक चाहिए, और ये वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर आज़ाद हो। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में आ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
लंदन में मुक़ीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में जारी सियासी गर्मा गर्मी और तहरीक एतमाद के बारे में मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कुछ पाकिस्तानियों का कहना था कि इमरान खान कौम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सके। एहतसाब का नारा भी महज नारा ही रहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की राय क्या है, आइए देखते हैं। 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि अतमद अपोजिशन इमरान खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अतमद माल आ रहा है। मुझे नहीं यकीन आता ये मंजूर होगी या इसमें कामयाब होंगे। ये अपना टर्न जो 5 साल का पूरा करके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद आनी चाहिए। इससे हुकूमत को अपनी कोताहियों का पता चलता है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। कामयाब क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो भी अपोजिशन के पार्टियाँ हैं उनका आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हाथ कर रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ हाथ कर रही है, मौलाना साहब दोनों के साथ हाथ कर रहे हैं। अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए इन सब को दिल के से एक साथ होना होगा। कि मेरा नहीं ख्याल कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब होगी। उसकी वजह ये है कि ये एक हवा सी बनी हुई है और ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जानी है। इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद काम किए हैं और वो अभी भी काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर ओवरसीज़ के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें पहली दफ़ा वोटिंग राइट मिला है, तो यूथ के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। और बड़ा चूँकि पहली हुकूमतें बड़े अरसे से कोई काम नहीं कर रही थी तो उन्हें बड़ा ग्रॉस रूट लेवल से काम करना पड़ा है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा टाइम और दें इस हुकूमत को, सपोज़ कि अगले 5 साल भी, तो जो कि उन्हें फाउंडेशन स्टार्ट की हैं उसके ऊपर डिलीवरी भी जल्दी से आना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान की आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। जो मीटिंग हो रही है डिफरेंट जमातों के, पीपल पार्टी, नून और MQM, ये पॉसिबल भी हो सकता क्योंकि कुछ लोग जो ओवरसीज़ के जो काम है वो नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो लोकल रिपोर्ट हैं जो लोग हमको अप्रोच करते हैं ओवरसीज़ के लिए, देखो कुछ चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट होने के लिए जो वादा किया था वो नहीं हो रहा। और इसलिए जो अगर लोग दूसरे यूनाइटेड होंगे तो ओबियसली अगर नो कॉन्फिडेंट वो कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं करना नहीं हो सकता। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर जो शुरू इन्होंने तहरीक की है, जो होने जा रहा है, जो मेरा नहीं ख्याल एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये इस वक्त सूटेबल है पाकिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए और स्पेशली ख़ास कर CPAC के लिए। हमें ये देखना है कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है। ठीक है, मसाइल हैं, बहसीत ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें नहीं चाहिए कि, मैं नहीं समझता कि इस वक्त राइट मूव है। अपोजिशन को चाहिए कि थोड़ा इंतज़ार करे और देखें इनके पास ऐसी टीम है, ये ना हो कि जी अभी तो नो कॉन्फिडेंस अगर फ़र्ज़ कीजिए कामयाब हो जाता है तो आया इनके पास आइंदा के लिए क्या लाया अमल है। स्कॉटलैंड के शहर डंफरमिलियन में पाकिस्तान ओवरसीज़ क्लब के ज़रिए तमाम एक तकरीब का इनाकाद हुआ जिसमें स्कॉटलैंड भर से सियासी, कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से देखिए चौधरी खालिद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए हम भी देखते हैं। स्कॉटलैंड के शहर डंफरमिलिन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्लब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में मोहम्मद बशीर चौधरी, राजा मोहम्मद कैसर, राजा लियाकत इकबाल, राजा इंसाल, निसार खोकर के अलावा दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर बातचीत की गई। ग्लासगो से लाहौर PIA की सर्विस के हवाले से भी बात हुई। खास तौर पर कश्मीर में जारी जुल्म सतम की मजम्मत की गई। लोगों का कहना था कश्मीर में कत्ले आम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। इस मौका पर लोगों का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कश्मीर को इस कश्मीरी मुसलमानों पर जो बर्बरियत की जा रही है, इंडिया को उससे बाज आना चाहिए। हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि हर फोरम पर इस मामला को उठाया जाए। आलमी बरादरी को भी अपना किरदार अदा करना होगा और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनकी आज़ादी देनी होगी, उनका बुनियादी हक उनको देना पड़ेगा। इसलिए आज पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रही है उस पर आलमी इदारे भी खामोश हैं और दोस्त इस बात को उजागर करते हैं कि कश्मीर पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए और कश्मीरियों को जो हक़ खुद अरादियत है वो दिया जाए। जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तकरीबन 8 लाख फ़ौज जिन्होंने इस वक्त सारा सराउंडेड किया हुआ है कश्मीरियों के, उनके राइट्स को जो उन्होंने दबाया हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो हम पुरजोर आवाज़ उठाते हैं और हमने एक करारदाद पेश करनी है जो कि हम यहाँ पे जो मकामी कौंसलेट है
इंडिया का, ताकि उन तक ये आवाज़ पहुँच सके और कश्मीरियों को जो है वो जल्द से जल्द वहाँ पे इंसाफ मिल सके। जो ओवरसीज़ पाकिस्तान ओवरसीज़ क्लब की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई और उसमें ओवरसीज़ के मसाइल को उजागर किया गया और उसके साथ जो स्पेशली जो कश्मीर पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए स्पेशल आवाज़ की। हम मज़म्मत करते हैं कि कश्मीर से जो है इंडिया ने जो फ़ौज मुसल्लत की हुई है उसे वापस बुलाया जाए और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए दुआ है कि वो जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाएँ। 8 लाख इंडिया की फ़ौज इस वक्त कश्मीर में है, उनको कश्मीर की जान छोड़ देनी चाहिए, कश्मीर को आज़ादी दें और वहाँ पे जो हालात हैं, जो जुल्म हो रहा है वो बंद किया जाए। प्रोग्राम के आखिर में पुरतकल्लुफ़ खाना भी पेश किया गया। दुबई में आलमी नुमाइश एक्सपो 2020 पूरी आबोताब के साथ जारी है। दीगर बेशुमार मेगा इवेंट्स के साथ साथ दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली दुनिया की बड़ी फूड एग्जीबिशन गल्फ फूड मकबूलियत और कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए कल 17 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगी। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई एक्सपो 2020 पूरी आबोताब से जारी है। वहीं दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुनिया की सबसे बड़ी फूड एग्जीबिशन गल्फ फूड भी मुनक्किद। इस फूड एग्जीबिशन में दुनिया भर की फूड इंडस्ट्री से मुतल्लिका सैकड़ों कंपनीज ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए, जबकि 13 फरवरी से शुरू होने वाली इस नुमाइश में अब तक लाखों अफराद कोविड SOPs के साथ विजिट कर चुके हैं। गल्फ फूड फेस्टिवल में पाकिस्तानी पवेलियन में 93 पाकिस्तानी कंपनीज ने अपने स्टॉल सजाए हैं। मारूफ पाकिस्तानी ब्रांड भी विजिटर्स की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गल्फ फूड में पाकिस्तान पवेलियन का दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल हसन अफजल खान ने दौरा किया। इस मौके पर कमर्शियल काउंसलर अदीम खान, शाजिया सिराज मौजूद भी उनके हमरा थी। इस मौके पर पाकिस्तानी एग्जीबिटर राय जहांगीर, सखी खान, सूडान के अबू बकर और दीगर का कहना था कि गल्फ फूड में शरीक इस बार पाकिस्तानी कंपनीज बेहतर और बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक शरीक हैं, जिसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। We are trader, we export and import. We export sesame seed and peanut. We import from Pakistan good rice and also sesame seed. पिछले 8 सालों से आज जो ये साल है काफ़ी बिजी रहा है और काफ़ी बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। और जैसा हमारा पाकिस्तानी पवेलियन इस साल माशाल्लाह पिछले सालों से काफ़ी बेहतर है और मैं चाहता हूँ जो हमारे एक्सपोर्टर्स है वो आके अगला साल और पार्टिसिपेट करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस के मौके मिले। हर साल हम यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस साल मतलब पिछले 7 साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा क्राउड है और मोर देन 216 कंट्रीज़ लोग यहाँ आए हैं और 4000 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ मौजूद हैं। कोविड की वजह से प्रैक्टिकली गल्फ फूड इस दफ़ा 2 साल के बाद हो रहा है और माशाल्लाह सबसे खुशी की बात है कि पाकिस्तानी कंपनीज़ ने बहुत शौक़ से और हिम्मत से यहाँ पे जो है ना वो पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान से हम स्पेशली चलगोज़े का काम करते हैं। पूरे नात रेंजर्स जो है ना, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, ये शुमाली इलाका जातूसी से लेके लाते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के डायरेक्टर नफीस अहमद, एजाज अहमद, मुस्तफ़ा अल्ताफ़ और बिजनेस काउंसिल के सीनियर रुकन सैयद आसिफ जमान, अजीज़ अली अकबर समेत पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की मारूफ शख्सियात इमरान बलोच, आरिफ पोलानी, मलिक आफ्ताब, तारिक चौधरी, ज़मीर बंगश और साजिद नवाज ने भी गल्फ फूड का विजिट किया और पाकिस्तान से आई कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। एक्सपो 2020 दुबई में एक हफ्ते में आने वालों की तादाद 19 हफ्ते कबल नुमाइश के आगाज़ के बाद पहली बार 10 लाख से तजावुज़ कर गई है और 14 फरवरी तक कल नुमाइश देखने वालों की मजमूई तादाद 1,34,57,400 तक पहुँच गई है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई एक्सपो 2020 ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। एक्सपो 2020 में शिरकत करने वालों की तादाद 14,34,00,000 से तजावुज़ कर गई। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत एक्सपो 2020 की कामयाबी का सबूत है। एक्सपो 2020 दुबई का वर्चुअल विजिट करने वालों की तादाद 12,10,00,000 से ज्यादा तजावुज़ कर चुकी है। ऐसे वक्त में जब एक्सपो 2020 दुबई के 6 हफ्ते बाकी हैं, यहाँ आने के ख्वाहां लोग अभी या कभी नहीं के उसूल को मद्देनजर रखते हुए इससे पहले कि ये इख्तिताम पजीर हो जाए यहाँ जल्द आने के ख्वाहां हैं। एक्सपो में मौसीकी के सितारों की शिरकत और आइंदा हफ्तों में कई ममालिक के कौमी दिन की तकरीबात से यहाँ आने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ होने वाली अहम तकरीबात में 10 फरवरी को बरतानिया के कौमी दिन की तकरीब थी, जिसमें ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज शहजादा विलियम ने शिरकत की। बरतानिया के कौमी दिन की तकरीब के एक दिन बाद फिलिपाइन ने अपना कौमी दिन मनाया। 11 फरवरी को साइंसी शोबे में लड़कियों और ख़वातीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौका पर बैनुल अक़वामी ख़वातीन माहिरीन ने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि किस तरह साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी में सिनफी मसावत और सबके लिए रसाई को यकीनी बनाया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के तालीमी इदारों में एक हफ्ते की तातीलात की वजह से भी कई खानदानों ने एक्सपो की सैर की। उनके लिए फैमिली फ्रेंडली शोज का इनेकाद किया गया और बच्चों के लिए भी मुतअद्दिद सरगर्मियों और वर्कशॉप्स का एहतमाम किया गया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बुलेटिन में आ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
जर्मनी में एक मुतहद तलबा तंजीम का क़याम पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में संग मील का किरदार अदा करेगा। ये कहना है जर्मनी में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का, जो पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन जर्मनी के नुमाइंदों से ऑनलाइन खिताब कर रहे थे। ये तंजीम जर्मनी में पाकिस्तानी तलबा की 32 तंजीमों की नुमाइंदगी करती है। ऑनलाइन तकरीब का हवाला जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर मिर्ज़ा से। जर्मनी में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल की ज़ेरे निगरानी तलबा हमारा सासा और पाकिस्तान का असल चेहरा है के उन्वान से वेबिनार हुआ, जिसमें जर्मनी में ज़ेरे तालीम तलबा ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी तलबा की तंजीमों के इत्तेहाद पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी वेबिनार से खिताब किया। पाकिस्तान सफ़ीर ने शुरका को खुश आमदीद कहते हुए बताया कि तलबा तंजीमों का इत्तेहाद एक अरसा से वकूअ पज़ीर होने का मुंतज़िर था। सफारत खाना की जानब से इस इक़दाम का मकसद तलबा के लिए एक यकजा प्लेटफॉर्म मुहैया करना था, जो तमाम पाकिस्तानी तलबा के मुख्तलिफ सवालात और ज़रूरियात का हल मुहैया करेगा। इस ऑनलाइन सेशन का इनेकाद पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन PSAB के बाकायदा और बाज़ाब्ता इफ्तिताह की गरज से किया गया। PSAB जर्मनी में मौजूद तकरीबन 32 पाकिस्तानी तलबा तंजीमों का अहाता करती है और जर्मनी में अपनी नौयत की पहली पाकिस्तानी तंजीम है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने तलबा पर जोर दिया कि क़याम पाकिस्तान में तलबा ने एक भरपूर कुव्वत का किरदार अदा किया। तलबा पाकिस्तान का मस्बत शख़्स उजागर करने में अहम किरदार के हामिल हैं। म्यूनिख में जल्द खुलने वाला तौंसल खाना दर हकीकत म्यूनिख और गिरदोनवाब में बसने वाले पाकिस्तानियों खुसूसन तलबा की जरूरियात के अदराक और मसाइल के सद्देबाब के लिए काम करेगा। PSAB के सदर वलीद चौधरी ने इस इकदाम पर सफ़ीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये इत्तेहाद पाकिस्तानी तलबा को जर्मनी में तालीम और रोजगार के हसूल में मददगार साबित होगा। आखिर में सफ़ीर ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए जोर दिया कि वो पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में आगाही और सरगर्मियों का हिस्सा बने। वो पाकिस्तानी तलबा की मदद और बिलखसूस उनसे मुतल्लिक बारावर काविशों को मिशन के तौर पर बुरुए कार लाते रहेंगे। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में मरकज़ विलायत अल-काइम सेंटर और फातिमा फाउंडेशन इमाम बारगाह में हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के हवाले से जश्न जोशो खरोश से मनाया गया। मज़ीद जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। शान तेरी तू वद न कोई, तेरे करम दी हद न कोई, शान तेरी तू वद न कोई। मुकर्ररीन ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हूर और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। हाफिज़ शम्सुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी तलख़ीस मुस्तदरक में तहरीर फरमाते हैं, ये खबर तवातुर की हद तक है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब खाना काबा के अंदर पैदा हुए। इस मौलूद का नाम क्या है? हातफ गैबी से एक आवाज आई, या अहलल बैतुल मुस्तफा नबी वसस्तहुमा बिवालदिन ज़की अनिस्महु शामिहुल अली अलियुन इश्तुका मिन अली। आवाज आई गैब से, अहले बैत हमने तुझे एक मौलूद के साथ मखसूस किया है, और सुनो मैं अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से निकाल कर इस मौलूद का नाम अली रखा है। कुछ लोगों का कहना है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी चाहते थे कि खाना काबा जिसके अंदर पैदा होना उनके लिए बाइस इफ्तिखार था, उसकी खिदमत करें। यही वजह थी कि उन्होंने बुतों को बुलंदी से उठाकर नीचे फेंक दिया। जाकिर अहले बैत सैयद सिब्तुल हसन, सैयद हुर हुसैन, सईद हैदरी, अवैस हैदरी और दीगर ने अपने अपने मखसूस अंदाज में जश्न को चार चांद लगाए, जबकि अलामा सैयद ज़ैगम अब्बास नकवी ने फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन इस्लाम पर खुसूसी रोशनी डाली। मीनारा इल्म जिसने पूरी कायनात को इल्म से रोशनास फरमाया, हकीकी मानों में रसूल की ताबेदारी करने का जो फरीज़ा है वो सही मानों में दुनिया को समझाया और कहा कि अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। और नबी ने इतनी अज़मत बख्शी कि कहा अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा,
اور غدیر کے میدان میں کھا من کن تو مولا فہذا علی مولا. بیسیکلی یہ جو دن منائے جاتے ہیں اہل بیت طاہر معصومین کے، ان کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ رہے، ہم وہ اعمال زندہ رکھ سکیں جو اعمال وہ ہمارے لیے کر کے گئے، تاکہ ہم خدا کی جو ہے وہ قربت کو حاصل کر سکیں. مومنین نے مل کر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو جشن پاک کی مبارکباد پیش کی. خصوصی دعائے خیر کے بعد آخر میں وسیع تر لنگر حسینی کا اہتمام بھی کیا گیا. شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اختتام پذیر ہوا. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.